Hello students, how are you all? So students, I hope you are all safe and well in this crucial period of COVID-19. So students, yesterday we have started with the exercise mental ability test that is given in your book at page number 55. Okay, so some of the sums we have already discussed yesterday. So we have discussed up to question number 3. First and second sum I have done for you, and third sum I have given you as the homework. So I hope you have done that also, because it is just similar to question number 2. So I hope that you have done question number 3 also by yourself only. And if you are having any kinds of doubt, so kindly clear it in your problem solving session that we are conducting daily at 1 p.m. except on Sundays. Okay, so moving next, question number 4. So let's read out question number 4, then we will solve it. Okay. Salma has 80 boxes of apples. If each box has 500 apples in it, how many apples does she have? So, according to this sum, Salma is a girl and she is having 80 boxes of apples. उसके पास कितने boxes हैं apples के? 80 boxes, and each box has 500 apples. तो हर बॉक्स के अंदर कितने एप्पल्स हैं? 500, सॉरी, हाँ, हर बॉक्स के अंदर कितने एप्पल्स हैं? 500 एप्पल्स हैं. सो हमें बताना है कि टोटल उन 80 बॉक्सेस में कितने एप्पल्स हैं जो कि उस सलमा के पास हैं. सो हाउ विल वी फाइंड आउट? यस, बाय मल्टीप्लिकेशन ओनली. सो हमारी स्टेटमेंट इसमें क्या होगी? इट कैन बी टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, okay, apples in each box. Second statement is equal to 500, and apples in 80 boxes is equal to 500 multiplied by 80. As simple as that. Okay, so I'll just show you on the notebook how you are going to do this sum. Okay, so you are going to do it just like this only. So first, second and third sum, first and second sum you will do on the book only, and third sum you all will do in the notebook, and fourth one also. थर्ड के बाद आप बाकी सारे सम, मतलब फर्स्ट सेकंड आप बुक पे कर सकते हैं, बट थर्ड ऑनवर्ड्स आपको जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस हैं दैट यू हैव टू डू इन द नोटबुक. ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 4 you can write the statement like total boxes of apples is equal to 80, apples in each box is equal to 500, बिकॉज हमारे पास हर बॉक्स में कितने एप्पल्स हैं? 500 एप्पल्स है ना. सो टोटल एप्पल्स शी हैव, हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उसके पास टोटल एप्पल्स कितने हैं. सो टोटल एप्पल्स कितने हैं उसके पास? यस. अब हम इसमें जो नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं उसको अगर हम एप्पल्स इन ईच बॉक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी कैन ईजिली गेट द आंसर. इससे हमें क्या पता लगेगा? तो टोटल एप्पल्स उसके पास कितने हैं. सो यू विल राइट इट लाइक दिस ओनली, टोटल एप्पल्स, टोटल बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स इन ईच बॉक्स, टोटल एप्पल्स शी हैव इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय 8. ओके, so this is how you are going to write the statement for this question number 4. And yes, the next is the calculation of multiplication. So next is the calculation जो आपको multiplication करनी है, that is 500 multiply by 80. आपको 500 से 80 से multiply करना है. So बेटा, one important thing that you can see here is that the multiplier and the multiplicand both are having zeros. उनके पीछे multiplier और multiplicand है, दोनों में zeros हैं पीछे. सो दैट मीन्स जो हमने मेथड फॉलो किया था मल्टीप्लाई बाय 100 and 10s, उसी को फॉलो करेंगे, सो दैट द मल्टीप्लिकेशन विल बिकम ईजी फॉर यू. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द मल्टीप्लिकेशन so that you can solve it. Okay, so the question was that you have to multiply 580, इसी को मल्टीप्लाई करना है ना हमें. so how you will do it? 500 मल्टीप्लाई बाय 80. ओके, हम इसको करेंगे. अब देखिए टोटल
मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर में मिला के हमारे पास टोटल कितनी ज़ीरोज़ हो गई? 1 इज़ हेयर, सेकेंड इज़ हेयर एंड थर्ड इज़ हेयर. So that means we are having 3 zeros here. Okay, so we will write it, 3 जोर है ना हमारे 3 ज़ीरोज़ हैं, इसीलिए हम इसको 3 ज़ीरोज़ हैं, 2 500 की और 1 80 की. So we will write 3 zeros here already. ठीक है, 3 ज़ीरोज़ लिख देंगे. अब देखिए ये ज़ीरोज़ तो हैं जो हमारी सॉल्व हो गई. नाउ हमारे पास क्या रह गया? 5 and 8. ओनली 5 and 8 इज़ लेफ्ट. ओके, सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सो वी विल जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई 5 and 8 and then we can easily get the answer. So now we will multiply 5 into 8 or 5 8s are or 8 5s are, whatever you want to say. 8 5s are 40. 40. So the answer is yes, 40,000. So the answer of this sum is 40,000 what? ये 40,000 क्या हैं? एप्पल्स. क्या हैं? एप्पल्स. ओके, सो आई विल शो यू हेयर ऑल्सो दैट यू हैव टू डू. देखिए 500 और 80 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आया? 500 इंटू 80 इज इक्वल टू 40,000 एप्पल्स. लास्ट में सॉल्यूशन सेंटेंस दैट आई हैव ऑलवेज यूज टू टेल यू that you have to write in every word problem the solution sentence. Therefore the 3 dots है वो denote करती हैं therefore you can write Salma also, you can write she also. Salma is, I think that will be better. Sorry, I have written here she मैंने लिखा है, but I think Salma will be better. Salma has total 40,000 apples. Okay, so I'm just going to show you the complete sum. So this is your complete sum number 4 of mental ability test. Okay, so just what we have done here. सबसे पहले हमने स्टेटमेंट लिखी है टोटल बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू 80 बॉक्सेस एप्पल्स के थे. देन एप्पल्स इन ईच बॉक्स, कितने बार एक बॉक्स में कितने एप्पल्स थे, इज इक्वल टू 500. देन टोटल एप्पल्स शी है, वो उसके पास टोटल एप्पल्स कितने हैं? सो 500 मल्टीप्लाई बाय 80. दैट मीन्स हमने नंबर ऑफ बॉक्सेस को नंबर ऑफ एप्पल्स इन ईच बॉक्स से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई. सो हमने आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमने क्या आंसर हमारा आया? 40,000. सो शी इज़ हैविंग टोटल 40,000 एप्पल्स. ओके, सो दिस इज द सम नंबर 4. आई होप दिस कैलकुलेशन ऑफ 500 विद 80 इज क्लियर. देखिए 500 और 80 में कितने ज़ीरोज़ हैं? 500 में 2 है, 80 में 1 है. तो सबसे पहले हम पिछले 3 ज़ीरोज़ लिख देंगे आंसर में. ओके, अगर वो 3 ज़ीरो लिख दी उसके बाद हमारे पास 5 और 8 रह गया. सो हमने 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया. सो व्हाट विल द आंसर? 8 5s are 40. सो द आंसर इज 40,000 एप्पल्स. ओके, मूविंग नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 says that Ronnie bought 10 chocolates at rupees 25 each. Ronnie ने कितनी चॉकलेट्स खरीदी? 10 चॉकलेट्स एट रुपीज़ 25 ईच. देखिए इस फर्स्ट सेंटेंस में आपको काफ़ी कुछ क्लैरिफाई, एक ही सेंटेंस में हमारी काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है कि रॉनी दिस इज़ अ बॉय. सेकेंड थिंग 10 चॉकलेट्स, उसने 10 चॉकलेट्स खरीदी. बॉट 10 चॉकलेट्स, उसने 10 चॉकलेट्स खरीदी एट द रुपीज़ फॉर 25 ईच. 25 रुपीज़ ईच. हर एक चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है? 25 रुपीज़. ओके, सो रॉनी ने 10 चॉकलेट्स खरीदी और उसकी हर एक की कॉस्ट, हर एक की, दैट मीन्स 10 चॉकलेट्स हैं, 25 25 25 25 ऐसे करके हर एक की की 25 कॉस्ट है. हर मतलब ईच इंडिविजुअली. हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन द चॉकलेट्स? सो हमें बताना है कि टोटल उसने कितना स्पेंड किया 10 चॉकलेट्स के ऊपर. ओके, सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि जो 25 रुपीज़ है वो एक चॉकलेट की कॉस्ट है. ओके, सो सिंपली व्हाट विल बी द स्टेटमेंट? टोटल चॉकलेट्स बॉट, और जस्ट राइट टोटल चॉकलेट्स, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं. टोटल चॉकलेट्स बॉट इज इक्वल टू 10. Okay, next
cost of each chocolate is equal to rupees 25. Then total money spent or cost of total chocolates or cost of all the chocolates, जो भी आपको लिखना हो, that you can write by multiplying 10 with 25. So just I'll show you this one also. Okay, so total chocolates is equal to 10. Cost of each chocolate is equal to rupees 25. So students, I always used to tell you, then don't forget to write the rupee sign. Rupee sign लगाना आप कभी मत भूलिएगा. Okay, that is very important. So cost of each chocolate is equal to rupees 25. Cost of 10 chocolates की cost कितनी है, is equal to rupees 25 multiplied by 10. So after multiplying 25 with 10, we got the answer 250. I hope ये कैलकुलेशन मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है. 25 इंटू 10. देखिए 10 जो हमारा मल्टीप्लायर है उसमें एक ज़ीरो है तो हमने सिंपली एक ज़ीरो लिख दी नीचे. ओके, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 25. 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे या 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 25. आई होप आपको याद होगी कि हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, एक जो प्रॉपर्टी थी कि अगर हम किसी 1 को किसी नंबर से या किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो द आंसर इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ. ओके, उसका आंसर हमेशा क्या होता है, वही नंबर ही होता है. ओके, सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज rupees 250. So at last we will write, therefore the cost of 10 chocolates is rupees 250. Okay, so I'll just show you the whole complete sum now. So this is our question number 5 of mental ability test. First of all हम क्या लिखेंगे, total chocolates is equal to 10. Cost of each chocolate is equal to rupees 25. Cost of 10 chocolates is equal to rupees 25 into 10. 25 into 10 किया तो हमारे पास आंसर आ गया rupees 250. Okay, so after multiplying 25 with 10, the answer is rupees 250. Therefore last में solution sentence, therefore the cost of 10 chocolates is rupees 250. Okay, so I hope this is also clear. This was our question number 5. Okay, so now moving next. Question number 6. Karuna earns rupees 100 per hour. How much she will earn if she works for 28 hours? Okay, this sum is just like question number 5. Okay, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जो करुणा है, शी इज़ अ गर्ल, वो काम करती है तो उसको 1 आवर, हर घंटे के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से उसको कितने रुपीज़ मिलते हैं, 100 रुपीज़. सो हमें बताना है हाउ मच शी अर्न इफ़ शी वर्क्स फॉर 28 आवर्स. तो उसको कितने पैसे मिलेंगे अगर वो 28 आवर्स तक काम करती है. कितने आवर्स तक, 28 आवर्स. सो दिस इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 5. ओके, आई विल जस्ट गिव यू अ स्मॉल हिंट फॉर दिस क्वेश्चन एंड देन यू आर गोइंग टू डू इट योरसेल्फ ओनली. ओके, छोटा सा हिंट दूंगी, उसके बाद आप बाकी आप अपने आप करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, इट इज़ द इजी वन एंड यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगी, मनी अर्न पर आवर. मनी अर्न पर आवर, एक घंटे में कितना आता है, एक घंटे में कितना कमाती है, मनी अर्न इन पर आवर, मनी अर्न इन एन आवर, जो भी लिख सकते हैं. मनी अर्नड पर आवर और मनी अर्न इन एन आवर. इन एन आवर मीन्स एक घंटे में, इज इक्वल टू रुपीज़ 100. ओके, देन
money earned in 28 hours. Money earned in 28 hours is equal to 28 multiplied by 100. Okay. So any other statement do you find, if you find is much suitable than this, money earn in 1 hour or money earn in an hour, उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई statement that you can make better, so you can make that one also. Okay. Okay, so this was our question number 6. So you will do it yourself only, and don't forget to write the units. Yes students, most of the copies that I have checked, that बहुत सारे बच्चों ने उसमें units नहीं लिखी हैं. So make sure you write the units. Okay, units लिखेंगे only then it is clear कि आपने जो आंसर निकाला है वो किस यूनिट में है, किस चीज़ का है, रुपीज़ में है, आवर्स में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है. ओके, सो जस्ट राइट द यूनिट वेरी प्रॉपरली. ओके, so with this we have finished our mental ability test. So this is done. Okay, so we have done mental ability test also. So you have to do question number 6 by yourself only. So now moving next, the next is chapter test. So this is the chapter test of chapter number 5, that is multiplication. Okay, so now we are going to solve it. I am not going to show you the answers. मैं आपको answers नहीं दिखाऊंगी, मतलब आप solve किया हुआ नहीं, that you will solve it yourself only. I am just giving you the hint, or I'll just try to solve it, and you should अगर आपको ये आता है so you must pause my video. मेरी वीडियो पॉज करिए, then do it, and then उसके बाद चेक करिए कि मैम का आंसर आपका आंसर आपस में टैली करता है या नहीं. ओके, सो अगर आपको, इफ़ यू नो हाउ टू सॉल्व दिस, जस्ट पॉज माई वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ, और उसके बाद वीडियो के साथ टैली करिए कि आपने आंसर सही निकाला है या नहीं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. इन क्वेश्चन नंबर 1, find the product 3038 into 29 and write answers in word. Yes, क्या करना है इसमें, इसमें हमें प्रोडक्ट निकालना है. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन से जो हमारा आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट. और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हमें किस में लिखना है, वर्ड्स में. वर्ड्स मीन नंबर नेम फॉर्म. अगर हमने किसी वर्ड्स को, किसी नंबर को वर्ड्स में लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं नंबर नेम्स भी बोलते हैं एंड इन वर्ड्स भी बोलते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर, और वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन, or we have to find the product of 3038 and 29. So let's start multiplying 3038 with 29. Okay, 3038 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे हम. Okay, just okay, 3038 multiply by 29. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन 1 by 1 हम डिजिट लेंगे, उससे मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे. सॉरी, आई जस्ट राइट इट अगेन. सो हमारे पास 3038 दैट इज़ आवर मल्टीप्लिकेंट एंड 29 इज़ आवर मल्टीप्लायर. सो अब हम मल्टीप्लायर से मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लाई करेंगे. बट डिड यू नो द टेबल ऑफ 29? नो. सो अगेन हम 1 by 1 एक मल्टीप्लायर इंडिविजुअल डिजिट लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक 9 and multiply with 3038 starting from the right hand side. So 9 8s are 72. 2 यहाँ, 7 carry. Okay, to the next number. 9 3s are 27. 9 3s are 27. 27 plus 7 34. So 4 हम यहाँ लिखेंगे, 3 will be carried to the next number. Okay. So next
3 zeros are, sorry, 9 multiplied by 0, 9 zeros are 0. अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगर हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे या 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0. सो 9 zeros are 0 और ऊपर हमारे पास कैरी कितना है? 3. 0 plus 3 is 3. ओके, नेक्स्ट 9 multiply by 3. 9 threes are again 27. So here we will write 27. Okay, next हमें लिखना है, अब हम नाउ वी विल मल्टीप्लाई विद 2. अब हम 2 से 3038 को मल्टीप्लाई करेंगे. सो उसके लिए सबसे पहले हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट अ क्रॉस, वी लीव अ ब्लैंक और वी मे पुट 0 ऑल्सो. ठीक है. सो सेकेंड स्टेप में हम एक डिजिट की प्लेस छोड़ के उसके आगे नेक्स्ट शुरू करते हैं. बेटा ये क्यों करते हैं? बिकॉज जो देखिए 29 है उसमें 9 हमारा 1s प्लेस पे है और 2 हमारा 10s प्लेस पे है. तो एक तरह से हम मानते हैं, अगर हम 2 को हम 2 नहीं 20 मानते हैं तो 20 में आप देखते हैं कि एक 0 होती है पीछे. ओके, तो उस 0 को हम यहाँ पुट करते हैं. बट अब 0 को हम किसी चीज़ में प्लस करेंगे या किसी चीज़ से माइनस करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती ना. So that's why you can write 0 also, you can put cross also. So now we will multiply the 3038 with 2 starting from the right hand side. So 2 8s are 16. 6 here. 1 carry to the next number. Okay. 2 3s are 6. 6 plus 1 7. Okay. 2 zeros are 0, so we will put 0 here. 2 3s are 6. Now we are going to add both these numbers. 2 plus cross is 2. 4 plus 6 10. 0 यहाँ पे, 1 carry to the next number. 3 plus 7 10. 10 plus 1 11. 1 here and 1 carry to the next number. 7 plus 1 8. 2 plus 6 8. So the answer is 88,102. Okay, so this is how you are going to do the multiplication. You will write 88,102. Okay, अब आपको इसी आंसर को 88,102 को किस में लिखना है? इन वर्ड्स में. ओके, सो कैसे करेंगे हम? आप क्या करेंगे बच्चे? यू विल जस्ट डू इट लाइक दिस. आपको लास्ट में लिखना है आंसर 88,102. ये आ गया. उसके बाद आप इसको वर्ड्स में लिखेंगे. 80. माई राइटिंग इज़ नॉट क्लियर बेटा. यू कैन राइट, यू जस्ट डू इट वेरी नीटली. 88,000 oh sorry, spelling is not clear. 102. ओके, so this is the answer. आप इसको कैसे वर्ड्स में लिखेंगे? 88,102. ओके क्लास, so this was our question number first of chapter test. आप जो बेटा मल्टीप्लिकेशन है 3038 इंटू 29, वो आप जो स्पेस फॉर रफ वर्क दिया हुआ है आपकी बुक में, एज यू कैन सी दिस इज़ द ना प्रोवाइडेड ना हियर. सो आप इसमें लिख सकते हैं. जो ये स्पेस फॉर रफ वर्क है इसमें आप अपना कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं. ओके, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग यू कैन जस्ट राइट द आंसर इन द गिवन ब्लैंक क्वेश्चन नंबर 1. ओके, इस गिवन ब्लैंक में आपको अपना आंसर सॉल्व करना है. नाउ मूविंग नेक्स्ट. a bag of mangoes weighs 135 kg. ओके, एक मैंगो का बैग है, उसका वेट कितना है? एक मैंगो से भरा हुआ बैग है, उसका वेट है 135 kg. हाउ मच विल 215 बैग्स ऑफ मैंगोज वेट? सो 215 बैग्स हैं जो मैंगोज़ के, उसका वेट कितना होगा?
सो बेटा नो नीड टू राइट द, देखिए हमारी चैप्टर टेस्ट है, सो यहाँ पे तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, सो यू विल डू दिस क्वेश्चन इन द फेयर नोटबुक. ओके, सो आपको ये क्वेश्चन किस में करना है, फेयर नोटबुक में करना है, प्रॉपरली विद लाइन्स एंड हेडिंग्स. ओके, so I'll show you how you will write it. Just wait. Okay, I'll just show you how you can do it. So this is how we are going to solve this sum. Okay, so this is, first of all we will write weight of one bag of mangoes. Weight of one bags of mangoes is equal to 135 kg. ओके, देन वेट ऑफ 215 बैग्स ऑफ मैंगोज. अब हमें देखिए 1 बैग ऑफ मैंगो का वेट दिया हुआ है 135 kg. अब हमें 215 बैग्स ऑफ मैंगोज का वेट बताना है. तो हम क्या करेंगे, 135 को 215 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. ओके, एज आई हैव डन ऑलरेडी हेयर सेट, बट आई एल गोइंग टू शो यू द कैलकुलेशन. सो आई होप these two statements are clear. First of all, you will write weight of one bag of mango is equal to 135 kg. Weight of 215 bags of mangoes is equal to 135 multiplied by 215. So as you can see beta, this is the multiplication of 3 digits number. Here the multiplier is also, sorry, the multiplicand is also 3 digit and the multiplier as well is also 3 digit. So both multiplier and the multiplicants are of 3 digits. So here the question will be solved in 3 different steps and last it will be addition. Okay, so just do the, let's start doing the addition, multiplication. Okay, just wait. Okay, I'll show you here. So देखिए हमें क्या करना है, 215 multiply by, okay, I'm just going to show you like this only. Okay, 135 multiply by 215. So ये हमारा 3 digit multiplication है, ये हमने पहले नहीं की है. So now we are going to do it right now. So 5 5s are 25. 5 इधर, 2 will be carried to the next number. 5 3s are 15. 15 plus 2, 17. 7 here, 1 carried to the next number. 5 1s are 5 plus 1, 6. So after multiplying 5 with 135 हमारा आंसर कितना आया, 675. So 5 is done, 5 का कैलकुलेशन होगी. Now we will move to 1. अब 1 से हम 135 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड. ओके, सो अब देखिए हमें सेकंड स्टेप में जाना है. सो दैट मीन्स वी विल पुट अ क्रॉस हियर. ओके, नाउ लेट्स मल्टीप्लाई 1 विद 5. 1 5s are 5, 1 3s are 3, 1 1s are 1. सो द आंसर इज 135. अगर हम 1 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल ऑलवेज बी द नंबर इटसेल्फ. ओके, सो नाउ हमारे पास थर्ड स्टेप है. सो थर्ड स्टेप में बेटा हम क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पे एक क्रॉस लगाया है. जितने हम स्टेप्स आगे बढ़ते जाएंगे सो उतने ही हमारे क्रॉस भी हैं जो बढ़ते जाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. 2 5s are 10, 0 here, 1 will be carried to the next number. 2 3s are 6, 6 plus 1, 7. 2 1s are 2. This is the answer for if you multiply 2 with 135. Okay, so अब हमें क्या करना है, इन तीनों को क्या करना है, ऐड. ओके, अब इन तीनों को ऐड करेंगे. 5, 7 plus 5 is 12. 2 here, 1 carry to the next number. 6 plus 3, 9 plus 1, 10. 0, 1 carry. 7 plus 1, 8. 8 plus 1, 9. 2. So the answer is 29,025. 29,025.
25. So the answer is 29,025. Okay. So this is the answer of our sum number 2. Okay class. So next sum is fill in the blanks. These are the very simple ones. So this is your homework that you have to do this fill in the blanks by yourself only on the book. आपको ये तीनों blank, ये जो blanks है थर्ड और फोर्थ, ये आपको खुद करने हैं. एंड द फिफ्थ वन ऑल्सो. फिफ्थ वन इज द MCQ. सो ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ इज योर होमवर्क. ये आपको खुद करना है. और इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट then you can ask me in our live session. Okay, so I think this is enough for today. So keep practicing, do your work neatly, okay, and stay safe. Good day, students.